اور بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے آج پیش ہونے والے پنجاب بجٹ کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت 2653 ارب روپے کا تیسرا بجٹ آج پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 10% اضافہ، نیا ٹیکس نہیں لگے گا، 50 ارب کی ٹیکس چھوٹ ملے گی۔ سٹی 41 کو موصول ہونے والے دستاویزات کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے لیے 560 ارب مختص، صحت تعلیم کے فنڈز بڑھائے جائیں گے۔ محصولات کی مد میں 4 کھرب 4 ارب کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز۔ 25 لاکھ لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس آئندہ بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب کے میزانیے میں رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لیے 89.5 ارب، روڈ بحالی پروگرام کے لیے 66 ارب اور نئی 19 یونیورسٹیز کے لیے 38.4 ارب، 5 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کے لیے 28.8 ارب، گرین پنجاب کے لیے 9 ارب رکھنے کی تجویز۔ خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے 591 ملین، ڈس ایبل پرسن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے 196.4 ملین رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ انٹرسٹی کیریج آف گڈز پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ انشورنس ایجنٹس، انشورنس بروکرز پر 5% جی ایس ٹی آن سروس کی تجویز۔ انٹرٹینمنٹ پر جی ایس ٹی کی شرح صفر رکھنے کی تجویز۔ نہری پانی کے استعمال پر 400 سے 500 روپے چارجز وصولی کی تجویز کی گئی ہے۔ نہری پانی کے استعمال پر سالانہ 5 ارب ٹیکس وصولی کی تجویز۔ زرعی انکم ٹیکس کی وصولی کا ہدف 3 ارب رکھنے کی تجویز کی گئی ہے۔ 6 لاکھ روپے تک سالانہ انکم والے کسانوں کو انکم ٹیکس میں چھوٹ ہوگی۔ ہائی وے اور موٹر وے کے اعتراف کمرشل پراپرٹی ٹیکس وصولی کی تجویز کی گئی ہے۔ 6 لاکھ روپے سے زائد شرح آمدن پر زرعی ٹیکس میں اضافے کی تجویز کی گئی ہے، جبکہ ہائی وے کے اعتراف فی کنال پر 5000 سے 8000 ٹیکس وصولی کی تجویز۔ ہائی ویز موٹر وے کے اعتراف پراپرٹی پر 7 ارب ٹیکس وصولی کی تجویز۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن پر 50% فیس وصول کی تجویز کی گئی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں سے ٹوکن ٹیکس کی مد میں 25% فیس وصولی کی تجویز کی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں، پنجاب حکومت 2653 ارب روپے کا تیسرا بجٹ آج پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، نیا ٹیکس نہیں لگے گا، 50 ارب کی ٹیکس چھوٹ ملے گی۔ سٹی 41 کو موصول ہونے والے دستاویزات کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے لیے 560 ارب مختص، صحت تعلیم کے فنڈز بڑھائے جائیں گے۔ محصولات کی مد میں 4 کھرب 4 ارب روپے کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز۔ 25 لاکھ لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس آئندہ بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب کے میزانیے میں رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لیے 89.5 ارب، روڈ بحالی پروگرام کے لیے 66 ارب اور نئی 19 یونیورسٹیز کے لیے 38.4 ارب، 5 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کے لیے 28.8 ارب، گرین پنجاب کے لیے 9 ارب رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے 591 ملین، ڈس ایبل پرسن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے 196.4 ملین رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ انٹر سٹی کیریج آف گڈز پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ انشورنس ایجنٹس، انشورنس بروکرز پر 5% جی ایس ٹی آن سروسز کی تجویز۔ انٹرٹینمنٹ پر جی ایس ٹی کی شرح صفر رکھنے کی تجویز ہے۔ نہری پانی کے استعمال پر 400 سے 500 روپے چارجز وصولی کی تجویز۔ نہری پانی کے استعمال پر سالانہ 5 ارب ٹیکس وصولی کی تجویز۔ فیصل آباد میں شہر میں تقریباً 2000 چھوٹے منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ ضلع بھر میں 1300 سے 35 سے زائد منصوبے نامکمل، منظوری کے باوجود کئی منصوبے شروع ہی نہ ہو سکے۔ حکومت فیصل آباد میں کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے میں بھی ناکام رہی۔ کشمیر پل انڈر پاس نامکمل، کینال سروس روڈ بھی نامکمل، شہر کے لنک روڈز نامکمل، فوڈ ٹیسٹنگ لیب نامکمل۔ اسی پر مزید بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ دفتر کے مطابق فیصل آباد میں رواں مالی سال میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، سیپ، ریپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت مختلف اسکیمیں جو تھی ان کے اوپر کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی کے تحت بھی جو تھی وہ منصوبے تھے، اور ان میں سے چھوٹے بڑے منصوبے اور کچھ اسکیمیں جو ہیں وہ شامل کرتے ہوئے
फैसला बाद में लगभग 2000 मंसूबों के ऊपर काम जो था वो हुआ भी और कई एक मुकम्मल भी हुई, लेकिन ज़राए के मुताबिक 1335 से ज़ायद ऐसी स्कीमें हैं जो कि नामुकम्मल रहीं, जिनके ऊपर या तो फंड्स का इजरा नहीं हो सका या किसी भी तकनीकी या फ़नी मसाइल के बायस जो है वो या दफ्तरी वजह की वजह से इसके ऊपर जो है वो काम नहीं शुरू हो सका या उसका जो है वो उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका। इनमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सेहत के शोबे में फैसलाबाद के मुख्तलिफ अस्पताल हैं, वहाँ पर तामीराती काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो यहाँ तक जो मेगा प्रोजेक्ट, एक ही मेगा प्रोजेक्ट था जो लीगी दौर में शुरू हुआ, जिसके ऊपर जो है वो बार बार सियासत भी की जाती रही, कश्मीर पुल अंडरपास, इसकी तकमील ना हो सकी। इसके अलावा फैसलाबाद में कई एक सर्विस रोड, लिंक्स रोड भी लीगी दौर में शुरू हुए, लेकिन अभी तक उन मंसूबों के ऊपर काम जो है वो जारी है, मुकम्मल नहीं हो सके। इसके अलावा नवल्टी पुल अंडरपास, फ्रंट प्रोजेक्ट फेज़ 1, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर मुतलका हुकूमत की जानिब से काम का आगाज़ ही नहीं हो सका। सीएम पैकेज जो था वो भी गुज़िश्ता साल अनाउंस हुआ और उसकी हतमी शक्ल रवा माली साल में सामने आई, उसकी मंजूरी भी हो चुकी, लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड काम जो है उसके ऊपर शुरू नहीं हो सका, जिससे नज़र ये आ रहा है कि लीगी दौर के बाद पीटीआई हुकूमत में स्कीमों को तो शुरू किया गया, लेकिन या तो मुकम्मल नहीं हो सकी या उनके ऊपर जो था वो फंड्स ना जारी होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज जो है वो चूँकि बजट अनाउंस होने वाला है तो शहरियों के से उम्मीदें भी हैं कि नए बजट में शायद कुछ बेहतरी हो सके, लेकिन पुराने बजट और जो माली साल गुजर रहा है बजट से शहरियों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का तीसरा बजट कैसा होगा? क्या उम्मीदें फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी को बजट 2021 और 22 से हैं? एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदगान और मेंबरान क्या कहते हैं, जान लेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, क्या उम्मीदें हैं? इस वक्त बजट 2021-22 से पंजाब असम्बली का तीसरा बजट पेश किया जाने लगा है। फैसल मियांदाद मौजूद हैं, डायरेक्टर मियांदाद फैब्रिक्स हैं। फैसल भाई, कैसे होने वाला बजट, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए जी, जो मैं समझा हूं ना अभी तक ये इस गवर्नमेंट का ये पिछले 3 बजट जो भी हुए हैं उनसे सबसे बेहतर बजट मैं ये समझ रहा हूं कि ये हुआ है। इसके बरक्स जो है पंजाब का, यही मैं समझ रहा हूं कि पंजाब का भी जो बजट है ना, गवर्नमेंट उम्मीद तो है कि ये अच्छा बजट पेश होगा, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो मुझे बेहतर नहीं लगी। एक तो ये पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर जो लेवीज वगैरह है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, उससे पेट्रोलियम आइटम्स 10 से 25 रुपए तक इंक्रीज़ होगा, वो आम आवाम के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। इसके अलावा जो विद होल्डिंग टैक्स जो है ना गवर्नमेंट ने वो ट्रेडर के ऊपर कम किया है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो बहुत बेहतर चीज़ है। वो अगर होगी है तो वो इससे हमें जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ये जो है ना चीज़ होगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर महंगाई जो है ना, महंगाई फिर भी पता नहीं क्यों है, समझ में नहीं आया कि महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई कम नहीं हो रही। राणा इकराम साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI मौजूद हैं। राणा साहब, क्या उम्मीदें हैं आने वाले पंजाब असम्बली के बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जैसे कि वफाक ने अपना बजट पेश किया तो वहाँ पर भी हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, तो काफ़ी हद तक वो अच्छा बजट पेश करने में कामयाब हुए। लेकिन अब चूँकि आज पंजाब का बजट आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पंजाब का जो बजट है वो भी ताजरों के लिए, आवाम के लिए एक अच्छा बजट होगा इन हालात में, क्योंकि काफ़ी देर के बाद शायद ये अच्छा बजट पेश करने में कामयाब हो। जैसा कि पंजाब की डोमेन में जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स हैं और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तो कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो टैक्सेस जो पंजाब की डोमेन में हैं, इनकी डोमेन में हैं, इन्होंने लगाने हैं, वो इस दफ़ा वो टैक्सेस ना लगाएं। अगर कम से कम अगर वो ख़त्म नहीं कर सकते तो उनको कम से कम किया जाए। और ख़ास तौर पे उम्मीदें वाबस्ता हैं, जैसे वफाकी बजट को सनत दोस्त, ताजर दोस्त कहा जा रहा है, ऐसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि पंजाब असम्बली भी कुछ ऐसा बजट लाएगी जिसके अंदर टैक्सों का वजन जो है वो ताजरों और सनतकारों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप इस हवाले से बता रहे थे कि ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग की ताजिर बिरादरी ने भी पंजाब हुकूमत के आज पेश होने वाले बजट से उम्मीदें बांध ली हैं। बताएंगे टोबा से नुमाइंदा सिटी 41 शाहिद महमूद। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज जो है सूबाई हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है, जिस हवाले से पंजाब के बजट के हवाले से ताजर बरादरी
इस पे क्या कहती है? मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के ज़िले चेयरमैन अमजद अजीम मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। अमजद भाई, किस तरह देखते हैं कि आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, क्या तवक्कुआत है, क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं, किस तरह समझते हैं इस बजट के हवाले से? जी, तवक्कुआत तो अब हमारी सारी ही हुकूमत से हैं कि क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ताजर बरादरी मुकम्मल क्राइसिस में है। ईद के दिनों में हमारा काम होता है, 3 ईदें हमारी ये कोरोना की नज़र हो गई, यानी कारोबार हुआ ही नहीं। पिछले साल 2 माह और इस साल तकरीबन 15-20 दिन कोरोना में गुजर गए, हफ्ते में 4 दिन काम हुआ है। तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं पंजाब हुकूमत से कि वो ताजर बरादरी का ख्याल करेगी, ताजर बरादरी को रिलीफ देगी, बल्कि तो पूरी कौम ही पिस गई है ये कोरोना के दिनों में। ये 2 साल कौम ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजारी हैं। तो हमारी इमरान खान साहब से भी और उस्मान बुज़दार साहब से भी ये दरख्वास्त है, ये अपील है, ये इल्तिजा है कि वो अवाम को जितना रिलीफ इस बजट में दे सकते हैं दें। अच्छा अमजद भाई, ये बताइएगा टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि वफाक के अगर बात करें बहुत कम टैक्सेस लगे हैं, वही पुराना बजट जो है उसको बेहतर रखा है, उसमें टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। पंजाब के किस तरह देखते हैं? जी, पंजाब हुकूमत भी तरक्याती काम पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं हुए, और टैक्सेस के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि टैक्स बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, क्योंकि हम टैक्स बहुत पे कर रहे हैं। जो लोग फाइलर हो गए, मसलन मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सेल टैक्स फाइलर हूँ, लेकिन मुझे बेनिफिट कोई नहीं है, 1 टके का भी नहीं है, बल्कि थ्रेट हैं कहीं ना कहीं से कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो टैक्स में भी हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ताजर बरादरी को भी, और जो भी लोग टैक्स देते हैं उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी चेयरमैन ज़िले अंजुमन ताजरान की, उनका कहना है कि उम्मीद है कि अच्छा बजट होगा। अब देखना है कि बजट जब पेश होता है उसमें क्या उम्मीद है कि अच्छा बजट होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत 2653 अरब रुपए का तीसरा बजट आज पेश करेगी। मजदूरों को सूबाई बजट से क्या उम्मीदें हैं? हमारे नुमाइंदा फजील अहमद मजदूर लीडर लतीफ अंसारी मजदूरों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आज सूबाई बजट पेश करने जा रही है। पीटीआई के दौर का तीसरा बजट आज पेश किया जाएगा, और जो फैसलाबाद के मज़दूर हैं, फैसलाबाद को मज़दूरों का शहर समझा जाता है, और मज़दूरों की क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से। पिछले बजट के अंदर 17,500 जो तनख्वाह है वो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि हर मज़दूर की कम से कम जो उजरत है वो 17,500 होगी, और अभी वफाकी हुकूमत की जानिब से 20,000 का ऐलान किया गया है। और आज जो सूबाई बजट पेश होने जा रहा है, इसमें क्या तवक्कुआत हैं मज़दूरों की, क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं? लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ़ अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? तीसरा बजट पंजाब हुकूमत पेश करने जा रही है, पिछले बजट जो हैं पेश किए गए उनकी निस्बत आप क्या उम्मीदें हैं आपकी? महंगाई और मज़दूर की तनख्वाह के हवाले से क्या कहते हैं, कितना फ़र्क पड़ा महंगाई में? बड़े अफसोस की बात है, पिछले 3 साल से जो महंगाई है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं दूंगा, 55 रुपये किलो चीनी थी जब ये हुकूमत आई, अब 105 रुपये हो गई है। और जब 1200-1400 रुपये मन गंदम मिलती थी, आज वो 2000 रुपये मन पे चलेगी। या इसी तरह डालडा जो घी है, डालडा घी जो है वो 3 गुना ज़्यादा 300 रुपये पर किलो पे चला गया है। बड़ी नहीं तो मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी। मजदूरों के साथ जो हालात कार हैं वो आपके सामने है कि आज उनको मिनिमम वेज जो अनस्किल्ड वर्कर है उसकी 20,000 रुपया 26 तारीख को मिनिमम वेज बोर्ड ने तय किया है। जी फजील अहमद, आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला काउंसिल में चेयरमैन का इजलास जारी है, जहां पर बजट और तरक्याती स्कीम्स के हवाले से तबादले ख्याल किया जा रहा है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हाई वाजिबुल एहतराम तमाम कुलीग्स, हमारे वाइस चेयरमैन साहबान, जनाब चेयरमैन साहबान, सबको मेरी तरफ से तहा दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिसने हमें दोबारा फिर इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का एक मौका दिया। यकीन कीजिएगा कि हालात इस तरह के थे कि एक दूसरे की शक्लें ही भूल चुके थे, कि हमारी कैबिनेट के दोस्त अहबाब जिस तरह हम इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की चेहरा शनासाई होती थी, वो यकीन कीजिए कि एक दूसरे को भूल चुके थे। आज तो देखें चेहरों पे बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। ये 2 सालों में मैंने देखा है याहिया नंबरदार साहब माशाल्लाह वो भी बारिश हो गए हैं। मैं खुद भी
इन 2 सालों में बहुत सारी तब्दीली आ गई है। जनाब राय साहब देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। जी जी बिल्कुल। मैं जनाब इसके बाद राणा शाहिद साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूं। हमारे भाई पंजाब के ज़िला झंग के जो दोस्त अहबाब थे सोशल मीडिया पे, जिस दिन उसका ऑफ होता। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मुहलिक बार में कमी। फैसलाबाद में 26 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। तनासुब 4% रहा। चिन्योट में 1 केस, झंग में और टोबा टेक्सिंग में कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं कोरोना के मुहलिक वार में कमी आने लगी है। फैसलाबाद में 26 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। तनासुब 4% रहा है, जबकि चिन्योट में 1 केस, झंग और टोबा टेक्सिंग में कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी आपको बताएं कि समनाबाद पुलिस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। फैसलाबाद समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे असदार हुसैन से। जी असदार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कोरोना वैक्सीन के लिए फाल बनाया गया था। 24 घंटे के लिए कहा गया था कि यहाँ पे शहरियों को जो है वैक्सीन लग सकेगी, मगर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पहली डोज लगवाने आए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हीं से जानते हैं। जी सर, किधर से आए? हाँ जी, मैं यहीं फैसलाबाद से आया हूँ। तो और ये कह रहे हैं बार बार कि जी आके कोरोना वैक्सीन लगवाएं। लोगों के पास किधर इतना टाइम है जो आए इधर आके टाइम वेस्ट करें। अभी आए टाइम निकाल के मजदूरी करनी होती है, तो आए हैं वो कहते हैं कि हमारी पहली डोज ही नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन लगवाने के लिए आए, मगर यहाँ पे डोज नहीं लग रही। हमारे साथ और भी शायरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, किधर से आए हैं? इधर अब्दुल्ला सिटी से, फैसलाबाद से। इधर नहीं है वैक्सीन, है नहीं इधर, ठीक है ना। 3 दिन हो गए इतने फिरते हैं, रोजाना आने 2 घंटे बाद आ जाओ, 5 घंटे बाद कोई नहीं इतने हैगी। जी बिल्कुल, 2 घंटे के बाद आ जाए और कभी कहते हैं 5 घंटे के बाद आ जाए, मगर वैक्सीन जो है नहीं लग रही। और ऐसे में 5 घंटे के बाद आए लेकिन फिर भी वैक्सीन ना लगाई जा सकी। बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। टैक्स चोरी या आमदन की तफसीलात जाहिर न करने पर गिरफ्तार करके तहकीकात होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे उमर अजमत से। जुमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स चोरी करने या फिर आमदन छुपाने वालों के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है और इस हवाले से फाइनेंस एक्ट 2021-22 में तरमीम भी कर दी गई है, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जो कि टैक्स चोरी करेगा या फिर अपनी आमदन की तफसीलात छुपाएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफपीआर इनलैंड रेवेन्यू के असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास इख्तियारात होंगे कि वो टैक्स चोरी करने वाले या फिर आमदन की तफसीलात छुपाने वालों की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी करे और उसके लिए उन्हें हेडक्वार्टर से मंजूरी लेना होगी, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो किसी भी टैक्स गुजार या फिर ऐसा शख्स जो कि अपनी आमदन छुपा रहा है या फिर टैक्स चोरी कर रहा है उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। जबकि इसके हवाले से जो मुतलका वक्त है उसके दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को इलाका मजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल अदालत में पेश करने की भी पाबंदी होगी। इस हवाले से ऐसे अफराद जो कि प्रोप्राइटर की उनकी रजिस्ट्रेशन है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद को में से भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकेगा, जबकि इसी तरह जो बड़ी कंपनीज कैटेगरी में रजिस्टर्ड होंगे उनके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स को भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकेगी। इस हवाले से अजमत आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मिडिल स्कूल्स को अपग्रेडेशन के बावजूद टीचिंग स्टाफ ना मिल सका। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पंजाब की तरफ से गुज़श्ता साल 1227 स्कूलों को एलिमेंट्री से हाई स्कूलों में अपग्रेड किया गया था। इस हवाले से तमाम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हेड और जो बाकी असाज़ा हैं उनकी तैनाती 1 साल बाद भी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। वहाँ पर वही मिडिल स्कूल के जो इंचार्ज थे उनको हाई स्कूल का एक्टिंग चार्ज दिया गया है, लेकिन मुस्तकिल जो सरबराह है वहाँ पर तैनात नहीं किया जा सका। इसके अलावा चूँकि मेट्रिक की क्लासेस के लिए खुसूसी तौर पर SST साज़ा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये वो स्कूल हैं जो अपग्रेड किए गए। फैसलाबाद में भी इनकी तादाद 52 है। यहाँ पर किसी भी जो ना तो असाज़ा की तैनाती यकीनी बनाई गई है, ना इसके अलावा तमाम
जो हेड्स हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जिसके बायस वहाँ पर जो इंतजामी मामलात हैं वो मुतासर होने के साथ साथ बच्चों की जो एजुकेशन है वो मुतासर हो रही है, क्योंकि मैट्रिक से ही बच्चों की डिवीज़न शुरू हो जाती है आर्ट्स और साइंस के। तो साइंस के मज़ामीन के लिए खुसूसी तौर पर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनका होना लाजिम है, लेकिन वो इन स्कूलों में मौजूद नहीं है, जिसके बायस इन तमाम स्कूलों में जो बच्चे 9th में रोल हुए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा साइंस मज़ामीन पढ़ने के हवाले से। और इसके बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया बेलगाम, ठेका न होने के बावजूद वॉशरूम पर 20 रुपए पर्ची फीस वसूली जारी है। इसी पर तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज है। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पार करने की पर्ची फीस, प्लेटफार्म की पर्ची फीस और अब जो है वो वॉशरूम की पर्ची फीस, जिसका अभी ठेका भी नहीं हुआ, मगर यहाँ पर रेलवे अफसरान की मुबैना मिली भगत से जो है वो वॉशरूम की पर्ची फीस वसूल की जा रही है। 20 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लिख कर लगाया गया है कि 10 रुपये वॉशरूम की पर्ची फीस वसूल की जाएगी, मगर इसके बावजूद जो है वो 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो तंग आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हर जगह जो है वो पर्ची फीस लगाई गई है महकमा रेलवे की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी आया हूँ, गाड़ी पार्क की है, 30 रुपये उसकी पर्ची फ़ीस है। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो 20 रुपये उसकी फ़ीस है। अगर आपने अपने मुसाफिरों को रिसीव करना है तो 10 रुपये की आई थिंक उसकी टिकट है। तो यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पे है कि अगर आपने सांस लेना है तो वो फ्री है, बाकी अगर आपने जो भी काम करना है ना यहाँ पे, अगर आप किसी स्टॉल पे चले जाएं उसकी कीमतें जो हैं हर चीज़ की एक्स्ट्रा वसूल की जाती हैं। जब उनसे मुतालबा किया जाता है कि आप ये क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जी हमारा ठेका हुआ है और ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, लेकिन चीज़ वही जो है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनका यही कहना है कि जो है वो अपनी मन मर्जी की पर्ची फीस जो है वो पर्ची माफिया की जानिब से वसूल की जा रही है और इसके साथ साथ ओवर चार्जिंग के मसाइल से भी मुसाफिर जो हैं वो आजिज़ आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर पर्ची फीसेज हैं, क्या कहेंगे इस वाले से, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? उस मुतालबा यही करेंगे कुछ सस्ता किया जाए सब कुछ। देखिए, जो मुसाफिर आते हैं 10 रुपये कहाँ से भरेंगे वो आगे, वॉशरूम में जाना वो 10-20 रुपये कम नहीं लेते वो, पर स्टॉल पर चले जाए उनका डबल रेट होता है हर चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल, रेलवे स्टेशन पर अपनी मनमर्जियाँ जो हैं अब वो की जा रही हैं ठेकेदारों की जानिब से, मगर यहाँ पर्ची माफिया का राज है। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के थानों में कौमी परचम की बेतौकीरी होने लगी। थानों में परचम मौजूद ना होना और खस्ता हाल होना लम्हा फिक्रिया। थानों में लगे सब्ज़ हिलाली परचम खस्ता हाल हैं। पुलिस अफसरान के दफातर पर भी कौमी परचम मौजूद नहीं। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के थानों के SHOs और मुहर्ररान सब्ज़ हलाली परचम की तौकीर से बेखबर हो चुके हैं। सब्ज़ हलाली परचम का वकार उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। इस हवाले से ये सूरत हाल का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब फैसलाबाद के थानों के ऊपर लगे हुए परचम या तो खस्ता हाल हो चुके हैं। ये सूरत हाल सामने आई है। यहाँ बड़ी तादाद में थाने ऐसे हैं जिनके ऊपर सब्ज़ हलाली परचम लगा ही नहीं हुआ। सब्ज़ हलाली परचम अरसा दराज से थानों के ऊपर से गायब है या खस्ता हाल हो चुका है। किसी SHO और मुहर्रर की जानब से ना तो खस्ता हाल परचम को तब्दील करने के बाद दुरुस्त परचम, ठीक हालत का, अच्छी हालत का परचम वहाँ पर लगाया गया, बल्कि कई थाना जात ऐसे हैं जिनके ऊपर परचम मौजूद ही नहीं है, जिसको दोबारा लगाने की जहमत नहीं की गई। इसी के साथ साथ फैसलाबाद में ये प्रैक्टिस भी ख़त्म हो चुकी है कि कौमी हलाली परचम को अलल सुबह सर बुलंद किया जाना और शाम के औकात में सर नगू करना, ये प्रैक्टिस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फैसलाबाद के किसी थाना में ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही। फैसलाबाद पुलिस के कुछ अफसरान के दफातर भी ऐसे हैं जहाँ पर सब्ज़ हलाली परचम नस्ब नहीं किया गया, सब्ज़ हलाली परचम मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस के ज़राए का कहना था कि सब्ज़ हलाली परचम फौरी तौर पर तब्दील करके नए परचम लगाए जा रहे हैं और नए परचम लगाएं, पुराने परचम तब्दील करके। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां महकमा ज़राअत रिसर्च विंग की जानिब से प्रोजेक्ट एक्सटेंट सर्विसेज टू डाट के तहत मिनी और पानी की सैंपलिंग का अमल जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर मनीर से। जी बाबर, बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत के रिसर्च विंग डिपार्टमेंट की जानिब से रवां मालियाती साल में
جو پانی کے سیمپل ہیں وہ تقریباً 1500 کے قریب کیے گئے ہیں. اسی طرح مٹی کے سیمپل 9000 کے قریب کیے گئے ہیں، جس میں بیشتر سیمپل جو ہیں وہ انفٹ ہیں. اسی سلسلے میں ڈاکٹر مظہر اقبال سینئر سائنٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، جو سیمپل انفٹ آ جاتے ہیں پھر انہیں بہتر بنانے کے لیے، فٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. جو آپ نے جو بات کی ہے کہ جو اگر پانی کے سیمپل جو انفٹ ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ہمیں نہری پانی کی جو ہے نا بلینڈنگ یا ڈیلوشن کرنی ہے، اس کو ملا کے لگانا ہے ٹیوب ویل واٹر کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے وہاں اس پانی میں جہاں وہ لگا رہے ہیں اگر ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو ہم نے سالٹ ٹالرنٹ جو ہے نا ورائٹیز لگانی ہے فصلوں کی، یا ایسے پودے لگانے ہیں جو سالٹس کو برداشت کر سکیں. تیسرے نمبر پہ ہم نے اس میں جپسم کا استعمال کرنا ہے. اور اگر جی بہت شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے. جنگ میں اسٹامپ فروشوں کو اسمارٹ کارڈ کی فراہمی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. تفصیلات جان لیں گے اویس خان سے. جی اویس. بالکل، جنگ میں حکومت پنجاب اور بورڈ آف ریونیو کی ہدایت پر تمام اسٹامپ فروشوں کو اسمارٹ کارڈز کا اجرا مکمل کر لیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع بھر کے 81 اسٹامپ فروشوں کو اسمارٹ کارڈ کا اجرا ممکن کیا گیا ہے. 2020 میں کابینہ کی جانب سے ریونیو ایکٹ کے اندر ترامیم کرتے ہوئے مینول لائسنس کا عمل جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا. اسمارٹ کارڈز بنوانے کا عمل جو کہ احکامات جاری کیے گئے تھے جس کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل کیا جا چکا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق محکمہ ریونیو کی جانب سے تمام تر اسمارٹ کارڈ کی فراہمی اسٹامپ فروشوں کو ممکن کی گئی ہے. اس حوالے سے اس اسمارٹ کارڈ کی فراہمی کے بعد اب تمام تر جو اسٹامپ پیپر جو ہے ان کی خرید و فروخت کا جو نظام ہے اس کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جا سکے گا. محکمہ ریونیو کے مطابق ریکارڈ مانیٹر کیا جا سکے گا. اویس خان، آپ آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد بادلوں کی لپیٹ میں تیز بارش نے گرمی کا سور توڑ دیا. موسم خوشگوار، بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بادلوں کی لپیٹ میں ہے اور تیز ہواؤں نے فیصل آباد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے وقاص بیگ سے. جی وقاص، فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بالکل، فیصل آباد شہر اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہے. بادلوں کی چادر پورے شہر پر موجود ہے. شہر کے مختلف مقامات پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. تیز بارش والے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد کا جھمرا روڈ، شیخو پورہ روڈ، جھنگ روڈ، ملت روڈ اور سرگودا روڈ جو ہے یہاں تیز بارش جو ہے وہ ہوئی ہے. اب بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ہلکی بوندا باندی اس وقت بھی جاری ہے. بادلوں کی لپیٹ میں شہر ہے تو شہری جو ہے گزشتہ دنوں کی کڑاکے دار گرمی کو بھول چکے ہیں. کڑاکے دار گرمی ایسی رہی کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے ستائی عوام جو ہے یہ مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ جو ہے ٹھنڈے مقامات کو تلاش کرتی رہی. لیکن آج قدرتی بارش نے جو ہے پورے شہر کو ٹھنڈا کر دیا ہے. فیصل آباد کی تمام شاہراہیں جو ہیں وہاں پر اس وقت پانی جو ہے وہ موجود دکھائی دے رہا ہے. واسا کا کام شروع ہو چکا ہے. واسا حکام جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جہاں پانی جمع ہوا ہے، جس میں خاص کر اقبال اسٹیڈیم کا علاقہ شامل ہے، وہاں سے پانی کی نکاسی کا جو سیٹ اپ ہے اس کو شروع کر چکے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے وقاص بیگ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.